Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 24th lecture of Basics of Industrial Engineering. So, in the last series of the lecture, we started one another new chapter, one another new topic from your syllabus, which is about the wages and wages incentives plans. So, in yesterday's lecture, we tried to discuss the various things about the wages, right? We just recap the yesterday's discussions. We start the introductions and what are the kind of the wages are there. There is a basic what is what is the definitions of wages, what is the definitions of the nominal wages. So basically the wages are the some kind of the payment which is made to the employer, which is provided by the employers to the workman against his efforts in the productions towards the production. So this is the wages. Then we also discuss the basic types of the wages, like the real wages, living wages, fair wages, minimal wages. We are discussing the minimal wages in the detailed discussions. Then we also discuss the some kind of the basic need for a rational wage policies. What kind of the basic needs are there, why they are why they are creating some kind of the rational policies, why it is needed for the employer perspectives and the employees perspectives, both of and right. Then we also discuss the various factors which is influencing during the setting up the wages systems. So few of the factors which is influence when we are deciding some kind of the wages structures for any kind of the organizations. So that's are the demand and supplies of the labors, certain kind of the statutory restrictions or certain kind of the law which is also some kind of the influencing during preparing some kind of the wages structures. Then the organization's abilities and willingness to pay, then the bargaining capacities, then the prevailing wage structures in the specific specific sectors or the industries, then the worker skills, knowledge and experiences, then the wages levels in the specific sectors or the industries, and the cost of livings. So these are the basic factors of that, and it is very crucial for the wages systems. Then some kind of the basic characteristics of the wages system, which will be discussed in the last previous lectures. Then we also try to discuss the two types of the wages payment, like the wages payments which is on the basis of the time, and wages payment which is basis on the output basis. तो एक रहता है टाइम के बेसिस के ऊपर आप कितने घंटे जो है वो काम करते हैं, उस हिसाब से आपको वेजेस मिलता है. दूसरा होता है जो आपको कितना आप आउटपुट निकाल के जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को देता है, उस हिसाब देते हो, उस हिसाब से जो है वो वेजेस स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके प्लान होते हैं. तो बेसिकली ये दो टाइप के जो है वो वेजेस होते हैं, और इस हिसाब से जो है आपके ये प्लान जो है इस हिसाब से तय किए जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द टू टाइप्स ऑफ द वेजेस सिस्टम्स. तो जैसे कि टाइम के हिसाब से होगा तो वो आप मंथली आपका टाइमिंग होगा, वीकली आपका वेजेस हो सकता है, पर डे का हो सकता है, पर हावर का हो सकता है. इस हिसाब से इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये हमने कल के लेक्चर में आपके साथ जो है वो डिस्कशन करने की कोशिश की थी. इसी तरह से हमने जो जैसे आउटपुट के ऊपर जो क्या क्या बेसिस होते हैं, तो उसके भी कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस जो इसके साथ हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी. अब लास्ट जो ये स्लाइड हमने डिस्कशन की थी, विच इज अबाउट द इंसेंटिव स्कीम, राइट. अब ये वेजेस यहाँ पे आपका खत्म हो गया. अब जो आज हमें डिस्कशंस करना है वो उसके बारे में है, विच इज अबाउट द इंसेंटिव्स. यानी इंसेंटिव्स जो है ये चीज़ है जो आपको वेज के अतिरिक्त मिलती है. सपोज आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, राइट. आप 8 घंटे में इतना प्रोडक्ट आप निकाल के देने वाले थे, आपने इससे ज़्यादा निकाल के दे दिया, तो कंपनी क्या है, तो कंपनी आपको एज एन इंसेंटिव्स कुछ ज़्यादा जो है वो मॉनेटरी टर्म्स प्रोवाइड करे. दिट इज़ काइंड ऑफ इंसेंटिव्स. दूसरा होता है कि कंपनी ने कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट किया, तो उस ज़्यादा प्रॉफिट का जो है
कुछ छोटा सा शेयर्स जो है वो हर एक अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बांटते हैं, विच इज़ सम काइंड ऑफ द इंसेंटिव्स। तो ये जो सारी इंसेंटिव्स है, तो इंसेंटिव्स को ASME जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया। कैसे? इट इज़ अ मेथड ऑफ द पेमेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द अर्निंग्स टू द प्रोडक्शंस। ये जो है वो एक तरीके का पेमेंट है विच इज़ डायरेक्टली रिलेट्स टू द अर्निंग टू द प्रोडक्शंस। ए सिस्टम विच एनेबल अ वर्कमैन टू इंक्रीज देयर अर्निंग, जिससे वर्कमैन की अर्निंग जो है वो इंक्रीज होती है बाय मेंटेनिंग और एक्सीडिंग एंड एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस। जो एक परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करके या फिर उसको थोड़ा और ऊपर करके जो है वो अपनी एक इनकम को बढ़ाता है, उसको जो है वो इंसेंटिव्स बोला जाता है। तो these are the tool of the management to stimulate the productions by encouraging the worker to produce a more than average in accordance with their productivity। ये एक मैनेजमेंट का ऐसा टूल होता है जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो मोटिवेट करके जो है और इस तरीके के बेनिफिट्स दे के जो है वो बना सकते हैं। सो देर आर द इंसेंटिव स्कीम्स की अगर बात करें तो देर आर द टू टाइप्स ऑफ द इंसेंटिव स्कीम, आइदर इट इज़ द वन विच इज़ द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और सेकेंड विच इज़ द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो फाइनेंशियल्स के अंदर हो जाता है कि आप कुछ कैश में इनको प्रोवाइड करें, और जैसे नॉन फाइनेंशियल्स के अंदर आप कोई एनुअल गिफ्ट प्रोवाइड करें, कुछ डिस्काउंट के कूपन प्रोवाइड करें उनकी फैमिलीज़ के लिए, कुछ स्पेशल उसके हॉलीडेज़ जो है वो प्रोवाइड करके दे। ज़्यादातर कंपनी ऐसी करती है कि उसकी फैमिली को हॉलीडे पैकेज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये जो है इस तरीके के इंसेंटिव्स जो है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आते हैं। So the management is may create a climate of the competitions amongst the employees to contribute constructively towards the organizations. This incentive is promote creativities and ideas generations, जिससे एक creativity उनकी बढ़ती है और एक idea generations जो है वो बढ़ता है। The incentive which is include the provisions for a good housing with all the modern amenities, recreations facilities, medical facilities, etc. The promotions to the employees and facilities for the personal growth, and a foreign business and educational tools. So then the incentive scheme, there are the individuals and the group incentive schemes. Under individual incentive scheme, the individual employee is paid and incentives on the basis of the individual performance or the output. This incentives is regardless of the output or the performance of the department of the organizations. The employers are liable to pay the incentive to those employees who are producing more than this standard output। ये एक इंडिविजुअल को जो डिपार्टमेंट के कुछ चूज़ किए जाते हैं कि आपने उनको एक स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश ये एनुअल ईयर में की है, तो उनको इस हिसाब से जो है वो इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम दी जाती है। दूसरा होता है ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। ईच एम्प्लॉय इज पेड एंड इंसेंटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ हिज ग्रुप which is he belongs. This group incentive scheme is preferred by the management as in turn they are gifting an output from the group. Within the group, each employee is going to get a equal share of incentives. Highly competitiveness, competent and प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस स्कीम। यानी ग्रुप में ये होता है कि ग्रुप में सपोज 10 बंदे काम करते हैं तो किसी का कंट्रीब्यूशंस जो है वो ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो सबको इस ग्रुप इंसेंटिव स्कीम में सबको एक अमाउंट दी जाती है, उसको आपको इक्वल शेयर में ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गुड इंसेंटिव सिस्टम्स की? द प्लान इज शुड बी सिंपल्स टू अंडरस्टूड एंड ईजी टू ऑपरेट। ऐसे इंटेंसिव स्कीम होनी चाहिए। द एम्प्लॉय इज शुड बी एबल टू कैलकुलेट हिज अर्निंग। द इंसेंटिव स्कीम इज शुड बी कंसिस्टेंट वन इंस्टॉल। द इंसेंटिव स्कीम इज शुड नॉट बी अल्टर्ड ऑफ्टन। द इंसेंटिव स्कीम इज शुड बी सच दैट इट शुड बी मोटिवेट एन एम्प्लॉय टू प्रोड्यूस अ मोर। देयर should be direct relation between the efforts and rewards. The incentive systems should not create the disharmony against the amongst the employees. So incentives plan, there are the differential there are the various kind of the incentives plan. The first, which is a differential piece rate system.
सो इसके अंदर दो प्लान्स आते हैं, टेलर्स डिफरेंस पीस रेट सिस्टम्स एंड मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। दूसरा होता है टाइम एंड पीस रेट सिस्टम, जिसके अंदर गैंट टास्क एंड बोनस स्कीम। तीसरा होता है प्रीमियम बोनस स्कीम, जिसके अंदर हेल्से प्लान्स, रोवन प्लान्स एंड बिडक्स प्लान्स। चौथा होता है अपना इफिशिएंसी बेस्ड प्लान, जिसके अंदर एमर्सन इफिशिएंसी प्लान। और पांचवा होता है ग्रुप इंसेंटिव्स स्कीम। यानी इस ये जो है वो तरह तरह की जो है वो इंसेंटिव्स स्कीम है, इस सब को आज हमें डिस्कस करने की कोशिश करनी है। तो वन बाय वन जो है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहला अपने पास आ गया इंसेंटिव्स प्लान के अंदर, पहला है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये क्या होता है? This plan was developed by F.W. Taylor, the father of the scientific management. Under this scheme, a standard output for a day is fixed based upon the accurate times and the method study. The employees who achieve these standards or produce more than the standards are given the high rate than those who fail to reach the standards. It considers both time and output. The differential rates are paid based on the quantity which is produced. तो यानी इस सिस्टम के अंदर, इस वाले इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर एक स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो तय किया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय वो स्टैंडर्ड आउटपुट तक या फिर उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो उस हिसाब से उसको टाइम और आउटपुट के हिसाब से वहाँ पे उसको पे किया जाता है एज एन इंसेंटिव्स। Characteristics of this system is the day's wage or earning is not guaranteed, right? इसके अंदर जो है एक हर एक दिन की वेजेस और अर्निंग जो है वो गारंटेड नहीं है। आप जिस दिन परफॉर्म करोगे उस दिन मिलेगा। द टू पीस रेट्स आर एप्लीकेबल टू लोअर पीस रेट फॉर आउटपुट बिलो द स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी आप नहीं परफॉर्म करोगे स्टैंडर्ड आउटपुट से नहीं तो कट भी हो सकता है। एंड द हायर पीस रेट for the output which is exceeding the standard output. The lower piece rate is considered for a below standard performance worker and higher piece rate for a standards or the above standard performance workers, right? तो ये चीज़ इसके बारे में थी, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के बारे में। इसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? तो एडवांटेजेस की अगर बात करें तो वर्कर इज पेड एज पर हिज एफिशिएंसी एंड he is paid only for the production time and not for the idle time. उनको सिर्फ प्रोडक्शन टाइम के लिए ही पे किया जाता है। ए क्लैरिकल वर्क इज केप्ट एट द मिनिमम, वहाँ पे मिनिमम क्लैरिकल वर्क होता है। और हाउ मच ही शुड ही प्रोड्यूस गेट अ रिक्वायर्ड वेजेस विच इज रिड्यूस द सुपरविजन एज पॉसिबल एज मिनिमम। इसमें सुपरविजन आपका बहुत कम हो जाता है। encourage the workers to produce a more and more and which is ensure a better utilizations of the resources. वहाँ पे डिफिकल्टीज और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? तो वर्कर इन ऑर्डर टू अर्न मोर विल नॉट केयर द मच ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द वर्क एंड द वेस्टेज एंड रिजेक्शंस। इससे क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, तो आपका वेस्टेज और रिडक्शंस जो है वो नॉर्मली बढ़ जाता है। The quantity orientation is make the worker to work fast in due the course of he neglect the safety measures. इससे सेफ्टी को भी खतरा हो सकता है। The decrease in the demand may have an adverse effects on the employees. Now the next, which is a Merrick differential piece rate plan. This system is similar to the Taylor differential piece rate system. It provide a 3-piece रेट एज कंपेयर टू द 2-piece रेट गिवन बाय द टेलर। जो टेलर ने 3 पीस दिए, 2-piece सिस्टम दी थी, ये मैरिक जो डिफरेंशियल प्लान है ये 3-piece सिस्टम्स दे रहा है। द प्रिवेलिंग पीस रेट अंडर दिस प्लान, राइट, जो यहाँ पे 3 कैटेगरीज दी है, अप टू 83% ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट। आप स्टैंडर्ड आउटपुट का 83% दोगे तो आपको बेसिक रेट जो है पर पीस आपको मिल जाएगा। आप अगर 83 से 100% तक दोगे तो आपको 1.10 एंड बेसिक रेट पर पीसेस जो है उस हिसाब से आपको मिलेगा। और आप 100% से ज़्यादा आउटपुट दोगे तो आपको 1.2 इंटू योर बेसिक रेट पर पीसेस आपको दिया जाएगा।
तो 3 कैटेगरीज यहाँ पे उन्होंने डिराइव कर दी मैरिक ने। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या हो सकती है? तो देयर इज अ मिनिमम वेज इज नॉट गारंटेड। आपको इतना मिनिमम आपको वेजेस मिलेगा इतना गारंटीड नहीं, आपको एटलीस्ट 83% तक जाना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो बेसिक रेट आपको मिल पाएगा। तो ये इसका थोड़ा डिफरेंशिएट यहाँ पे क्रिएट करता है। द स्टैंडर्ड रेट इज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर थ्रू द एनालिसिस ऑफ द ईच जॉब. It encourages the worker to produce more, and if they come up to the 83% of the standard performance, they are going to get a piece rate above the standard piece rate. Now the third, which is the Gantt task or the bonus scheme. तो ये तीसरा जो है एक तरीके का इंसेंटिव्स प्लान है। तो इसके अंदर क्या होता है? सो दिस स्कीम वाज प्रपोज्ड बाय द हेनरी गैंट, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्लान हमको दिया था। क्या बताया उन्होंने इस बारे में? इन दिस सिस्टम अ मिनिमम वेज इज गारंटेड। आपको यहाँ पे मिनिमम वेज तो गारंटेड कर दिया है, राइट, फॉर दोज वर्कर वू कैन नॉट रीच द बोनस लेवल, जो खुद बोनस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। सो इन दिस सिस्टम अ मिनिमम वेज इज गारंटेड फॉर दोज वर्कर वू कैन नॉट रीच द बोनस लेवल, जो खुद बोनस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। द स्टैंडर्ड आउटपुट इज फिक्स्ड बेस्ड अपॉन अ केयरफुल स्टडी. If the worker is achieve the standard output or produce more than the standard output, he will provide with an extra allowances between the 25% to the 50% of the hourly rate. तो एक मिनिमम वेज तो यहाँ पे फिक्स उन्होंने कर दिया, उसके साथ एक स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो कैलकुलेट करके केयरफुली बनाया। अगर कोई एम्प्लॉय स्टैंडर्ड आउटपुट या फिर उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करके देता है तो एज एन एक्स्ट्रा अलाउंसेस उसको 25 से लेके 50% तक जो है वो हावरली रेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? द मिनिमम डेज वेजेस इज गारंटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। यहाँ पे परफॉर्मेंस कितना भी घटिया होगा या अच्छा होगा तो इस हिसाब से उसको एक गारंटेड मिनिमम वेजेस तो उसके लिए बनाए हैं। द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द वर्कर इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द कैलकुलेट ऑफ द इफिशियंसी. The time wages without the bonus are paid below the standard performance. A time wages plus an increase in the wage rate is considered at the standard performance. A high piece rate is considered in place of time wages above the standard performance. Now the next, which is the Halsey's premium plan. ये दूसरा प्लान है। तो ये चौथा प्लान हो गया अपना। इट इज़ अ गेन शेयरिंग प्लान. इट इज़ ए गेन शेयरिंग प्लान. आप जितना गेन करोगे उतना शेयर करना पड़ेगा. इन दिस प्लान अ स्टैंडर्ड टाइम्स आर एस्टेब्लिश्ड. हर एक के लिए स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है, विच इज़ बेस्ड अपॉन द पास्ट परफॉर्मेंस. पास्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर से द प्लान इज गारंटीज टू द वर्कर a certain base rate and in addition a certain percentage of the time he has shaves on the job. तो यहाँ पे ये चीज़ होता है कि आप कितना प्रोड्यूस करते हो और प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगाते हो और उस टाइम में कितना आप सेव करते हो, राइट. आप जल्दी ख़त्म कर दोगे तो इस हिसाब से आप जितना टाइम सेव करोगे उतना आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो इस हिसाब के आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा. द अर्निंग इन दिस स्कीम इज compared as follow. The bonus is earned which is 1/2 of the TS minus TT, which is the standard time minus time which is actually taken. Suppose के standard time था 15 मिनट, actually time you are taken which is 12 मिनट, so 1/2 into 15 minus 12 into R which is a hourly labor rate. hourly labor rate आपका जैसे फिक्स किया गया 50 रुपीज़, सो 1/2 इंटू 3 इंटू 50, तो ये आपका अर्निंग हो जाएगा एक्स्ट्रा इन द फॉर्म ऑफ द बोनस विच इज़ द अर्निंग विच इज़ 1/2 इंटू TS प्लस TT इंटू R. Now next, which is what are the advantages of the Halsey's premium plan?
It is guarantee a fixed wages to the slow workers and at the same time the additional payment to the efficient worker. यहाँ पे दोनों कंडीशंस, दोनों के लिए बेनिफिट है. जो स्लो वर्कर्स हैं उनके लिए गारंटेड वेजेस है, जो ज़्यादा इफिशिएंट्स है उनके लिए कुछ एडिशनल पेमेंट के भी प्रावधान है. The production cost is saving a simple in the operations and the worker can compute his day earning without any difficulties. Some kind of the disadvantages are there. So this plan does not give the bonus on the time saved, राइट जो आप टाइम बचाते हैं उसके अगेंस्ट में कुछ बोनस नहीं मिलता आपको, बट इट गिव्स अ बोनस ओनली ऑन द परसेंटेज ऑफ द टाइम सेव्स. कितना परसेंटेज ऑफ टाइम आप सेव करते हैं उस हिसाब के आपको बोनस मिलेगा. एनी मिस्टेक इन कंप्यूटिंग द स्टैंडर्ड टाइम विच इज अफेक्ट्स टू द वर्कर अर्निंग. अगर आप कुछ कैलकुलेशंस में कुछ कंप्यूट करने में कुछ डिफिकल्टीज करते हो, आप प्रॉब्लम करते हो, तो फिर उसका अर्निंग के ऊपर सीधा असर रहेगा. द इंसेंटिव इज नॉट मच attractives to the workers. Now next plan which is about the Rowan's premium plans. ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा. So this Rowan's plan was devised by the James Rowan of the Glasgow in the year of the 1901. तो ये प्लान जेम्स रोवन ने ग्लास्गो के अंदर 1901 के अंदर इसको डिराइव्ड किया था. द प्लान विच इज प्रोवाइड द ईच वर्कमैन ए गारंटी मिनिमम वेजेस प्लस बोनस फॉर अ सर्टेन पोर्शंस ऑफ द टाइम सेव्स. इस प्लान के अंदर वर्कमैन को एक मिनिमम गारंटेड वेजेस के साथ साथ बोनस के अंदर एक सर्टेन पोर्शंस ऑफ जो टाइम बचाते हैं उसके लिए दिया जाता है एज ए बोनस. The proportions of the time which is payable for the incentive is being the ratio of the actual time which is taken to the standard time. So the earning under these schemes are the bonus which is upon the TT which is the time taken upon the time standard time into the standard time minus time taken into the rate of that bonus. So the earning is equal to the rate of that bonus into the time taken plus standard time minus time taken upon standard time into the rate into the standard time. So the time taken plus rate into 1 plus standard time minus time taken upon standard time. इस हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाता है. So the advantages of the Rowan's premium plan are as above. So the encouragements to the slow workers and the trainees, यहाँ से जो स्लो वर्कर्स हैं उनको थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है, ट्रेनिंग्स को एनकरेजमेंट मिलता है. द एम्प्लॉयज विल गेट अ पार्शियल बेनिफिट्स ऑफ द इंक्रीज्ड आउटपुट, ए गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ लूज स्टैंडर्ड्स. जो कुछ लूज स्टैंडर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट में आपको कुछ अच्छा प्रोटेक्शंस मिलता है. डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें रोवन प्लान्स की, तो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स टू कंपेयर्स टू अदर इंसेंटिव स्कीम. इसको दूसरी इंसेंटिव स्कीम्स के साथ कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है. द शेयरिंग कंसेप्ट इज नॉट फेवर्ड बाय द वर्कर एंड सो अनपॉपुलर अमंग द वर्कर. इसका शेयरिंग कंसेप्ट जो है इज नॉट इन द फेवर ऑफ द वर्कर, ये वर्कर के फेवर में नहीं है, इसलिए बहुत कम जो है ये रोवन्स प्लान प्रीमियम प्लान जो है वो पॉपुलर हुआ है. अब नेक्स्ट जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं विच इज द इमर्सन्स इंसेंटिव्स एफिशिएंसी प्लान. सो इमर्शंस जो इंसेंटिव्स एफिशिएंसी प्लान है वो किस बारे में बताता है. सो अंडर दिस प्लान अ डेज वेजेस irrespectives of the output performance is guaranteed, right. इनके अंदर जो है जो डेज वेजेस है, दिन का वेजेस है, irrespectives of the output, right, irrespectives of the output is guaranteed, वो guaranteed है. स्टैंडर्ड आउटपुट बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस, जो पास्ट के परफॉर्मेंस है उस हिसाब से उसके स्टैंडर्ड आउटपुट के हिसाब से इज टेकन एज ए 100% efficiency. The actual output of the worker is compared with the standard output. आपका एक्चुअल जो वर्कर का आउटपुट है उसको स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ कंपेयर किया जाएगा एंड कैलकुलेट हिज एफिशिएंसी. अब उस एफिशिएंसी के हिसाब से जो है वो एक स्टैंडर्ड गारंटेड वेजेस के साथ आपको जो भी आप एज एन बोनस मिलेगा आपको.
सो इमर्शन इफिशिएंसी प्लान किस बारे में बताता है? तो इफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट की जाती है कि आपने एक्चुअल जो आउटपुट दिया वो और हिसाब से आपने स्टैंडर्ड इफिशिएंसी क्या होनी चाहिए। तो इफिशिएंसी इन द परसेंटेज, सो द एक्चुअल आउटपुट फॉर द पीरियड डे के हिसाब से अपॉन अ स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द पीरियड इनटू द 100। तो इस हिसाब से इफिशिएंसी हमें परसेंटेज के अंदर मिल गई। सो an incentive bonus is paid to the workman of his output which is exit, which is the 2 by 3rd percentage of which is about the 66.67 percentage of the standard performance of the 100. So if the earning in this method is computed as if the efficiency which is below the 66.67 percentage, no bonus, only the time wages is provided as per the day calculations. If your efficiency is between the 66.67 to the 100%, the time wages वो तो पहले भी मिलता था plus bonus at a different percentage which is increased rapidly to the 20% at the 100% efficiency. And third, which is the over 100% time wages plus 20% bonus plus 1% bonus of each 1% which is increase in the efficiency which is beyond the 100%. तो टाइम वेजेस तो है ही, 20% बोनस उस हिसाब से जो अगला वाला प्लान है उस हिसाब से, और 1% और ज़्यादा जो आप 1% काम जो है उसमें इफ़िशेंसी दिखाते हो जो 100% के ऊपर है उसका 1% आपको और मिलेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड की जाते हैं। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने इसके सारे प्लान्स जो है अलग अलग वेजेस के इंसेंटिव्स प्लान है वो आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम में कुछ कुछ प्लान्स जो है पूछे जाते हैं, तो आप इस हिसाब से इसको रेफ़र करने की कोशिश करिएगा। आपको इस हिसाब से इसका असाइनमेंट्स भी अपने बुक में लिख देना है। यहाँ पे आपका जो चैप्टर 4 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, राइट। आपका चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अबाउट द जॉब इवैल्यूएशंस एंड वेजेस and incentives plans are completed right now. If you have certain kind of the questions regarding in this chapter, you can ask me in the comment sections. I will definitely clear your doubts and questions in the next series of the lecture. After watching this video, you have to write down your enrollment number into the comment sections, which is counted as your online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lecture.